Okay, student. This is chapter number 6, understanding media, part 2. So, before this part, we had learned about the media and technology, media and money. Now, next is that media and democracy. Media and democracy in our country, we have to see everything that in the television, right, in the media also, what to provide in front of the people, what to give the message in front of the people, because our country is a democracy country. We cannot hurt any type of the religious. उसके अंदर कोई ऐसा बोल नहीं सकता भाई ये धर्म वाला नहीं, ये धर्म वाला नहीं, ये काम किया, this religious has come worked like this and these peoples are doing like this. We cannot see that violent wala advertisement we cannot give to the people in front of the public. So media and democracy, in a democracy the media plays a very important roles in providing news and discussing events taking place in the country and the world. It is on the basis of this information that a citizen can, for example, learn how government work, and often if they wish to they can take action on the basis of these news stories. Some of the ways in which they can do this is by writing letter to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign asking and government to rethink its program etc. अगर कोई भी प्रोग्राम अगर ऐसा बनता है, जैसे कि देखो हमारे केरला में क्या हुआ था बिफोर लॉकडाउन के पहले लास्ट ईयर 2019 में शाम के टाइम पर, राइट, वहाँ पे क्या था कि क्रिश्चियंस लोगों को, वहाँ के हिंदूस लोगों को और मुस्लिम्स लोगों को एट द इवनिंग टाइम दे हैव टू प्रे एट द 7 o'clock टू 7:45 7:30 उसका टाइम है, आधा घंटे का प्रेयर करने का कंपलसरी है पूरा केरला के अंदर, राइट, कोई भी कास्ट हो उनको सबको प्रेयर करने का. बट ये सीरियल जो आने लगा यहाँ पे टीवी के अंदर, तो धीरे धीरे क्या हो गया कि सब लोग प्रेयर को छोड़कर सीरियल के तरफ जाने लगे. So some of the people have started murmuring to these people, but this is not fair, this will be not done continuously, we have to teach prayers and everything. So they started to give the information to the minister and they stop at that time. Where this time that minister order to the people, the media, that you have to stop that this type of the serials at 7 to 7:30. वहाँ पे मीडिया को ऑर्डर आ गया. अब यहाँ पे क्या हो गया कि 7 o'clock को सिर्फ वहाँ पे एक न्यूज़ रखेगा. क्या रखेगा वहाँ पे? 7 o'clock को एक न्यूज़ रखेगा. वो न्यूज़ तुमको वापस भी तुमको देखने को मिलेगा, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको देखना है वो देखना है. इसलिए क्या हो गया यहाँ पे न्यूज़ तो कोई देखेगा नहीं. सो व्हाट हैपन देयर, द पीपल आर स्टार्टेड टू अगेन दे आर स्टार्टेड टू बिकमिंग एज ए स्टार्टेड टू प्रे टू द गॉड. तो ये वहाँ पे कहा गया, राइट. अभी now the fresh news has came. I explained you that one of the fresh news has came that whoever was acting in this advertisements, जैसे कि मान लो अमिताभ बच्चन जो है वो डॉक्टर साबू के ऊपर वो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है. अगर उस डॉक्टर साबू के अंदर से अगर किसी का भी जान हानि हुआ, किसी का भी जान चला गया, या कोई भी केमिकल के हिसाब से या रिएक्शन के हिसाब से अगर कुछ भी हो, तो वो जो केस जो होगा ना वो उनके ऊपर भी होगा, मीडिया के ऊपर भी होगा और कंपनी वाले के ऊपर भी होगा, और साथ में जिसने इसके साथ एडवर्टाइजमेंट किया है अमिताभ बच्चन के ऊपर भी होगा. समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक नया रूल्स अपना लो यहाँ पे पास हुआ है, ये अभी नया न्यूज़ आया हुआ है. सो लाइक दैट वे दे आर टेलिंग दैट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक. ये किसके लिए? पब्लिक के लिए. इसके लिए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो पहले से जान करना चाहिए सबको पहले क्या जान करना चाहिए? सब लोग पहले उनको खुद को जान करना चाहिए कि भाई ये पब्लिक तक देना चाहिए या नहीं. Given the role that the media plays in providing information, it is important that the information be balanced. Let us understand what we mean by the balanced media reported by reading two versions of the same news even given on the next page. इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है, पब्लिक तक इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है, लेकिन डिटेल्स में भी उसको देना नहीं है, क्योंकि कुछ न्यूज़ जैसा होता है कि पब्लिक के बीच में वायलेंट शुरू हो जाता है. सो यहाँ पे दो ऐड दिया गया यहाँ पे दो पेपर के अंदर, न्यूज़ ऑफ द इंडिया रिपोर्ट एंड सेकंड इज़ दैट इंडिया डेली रिपोर्ट.
इसके अंदर बताया गया है कि एक न्यूज़ में जो है क्रैकडाउन ऑन पोल्यूशन फैक्ट्रीज प्रोटेक्ट्स ब्लॉक रोड्स एंड डिसरप्टेड ट्रैफिक, यानी कि क्रैकडाउन जो फटाकड़े फोड़ा जाता है उसमें क्या हो जाता है, पोल्यूशन होता है, फैक्ट्रीज पोल्यूशन होता है, राइट। तो इसको क्या करना, रोड में ट्रैफिक हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, इसके लिए यहाँ पे एक वायलेंट वाला एक ऐड यहाँ पे है। Violent protest by owners and workers brought the city to the standstill. Today, people getting to work could not do so on time because a huge traffic jam. The owner and the workers are protecting the government decision to close down pollution factories united. और यहाँ पे पब्लिक क्या कर रहा है कि भाई फैक्ट्री जो है उसको बंद करना है, जो फैक्ट्री जो है वो पोल्यूटेड कर रहा है। एंड take this decision rather hastily. The protesters have known for quite some time that their units are not legal. Moreover, the levels of the pollution in the city will be greatly reduced by the closure. Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, "With our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be a clean and green city. Polluting factories should be moved. The factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of the protesting." राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जो फैक्ट्री जो पोल्यूशन कर रहा है तो दे हैव टू स्टॉप इट, राइट। उनको मालिक को और उसके अंदर जो पब्लिक काम कर रहा है उनको दोनों को समझाया जा रहा है ताकि हमारा सिटी जो है वो ग्रीन सिटी बन के रहे। सेकेंड इज दैट क्लोजर ऑफ द फैक्ट्रीज कोस unrest. The closure of the 1 lakh factories in the city residential areas is likely to become a serious issue. On Monday, thousands of factories owners and workers took to the street to strongly protest its closure. अब यहाँ पे देखो दूसरा न्यूज़ क्या आया कि यहाँ पे जो कंपनी वाले जो होते हैं और उनका वर्कर जो होते हैं वो लोग स्ट्रीट पे उतर आया कि भाई ये कंपनी को बंद करना नहीं है। They said that their livelihoods would be lost. उनका जो लाइवलीहुड यानी कि जीने का सहारा, तो कंपनी अगर कंपनी को बंद कर दे तो हम लोग क्या खाएंगे। They say that the fault lies with the municipal corporation because it continue to issue license for new factories to be set up in residence area. और ये किसी का गलती नहीं, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का गलती है क्योंकि वो लोग ही लाइसेंस दे रहा है फैक्ट्री को, जहाँ पे रेसिडेंट एरिया जहाँ पे लोग रहता है उसके बीच में फैक्ट्री को बनाने का लाइसेंस इन लोग क्यों देता है। They also say that there were no adequate relocation effort. The owners and workers plan to one day city बंद to protest against the closure. अभी ओनर और पब्लिक ने मिलकर क्या किया, पब्लिक मतलब कंपनी में जो काम करने वाले लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बोला कि एक दिन हमको यहाँ पे पूरा बंद चाहिए, यानी कि पूरा जो सिटी जो है उसको बंद कर दूँ। Mr. Sharma, one of the factory owners, said the government says that it has done a lot of relocation us, but the areas they have sent us to have no facilities and have no been development for the last 5 years. हम लोग को जो एरिया हमको लोकेट किया था फैक्ट्री के लिए वो जगह हमारे लिए सेफ़ नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हम लोग कर सकता नहीं है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे फैक्ट्री बनाया। सो दिस इज़ द 2 इंसिडेंट्स ऑफ द 2 फैक्ट्रीज, है ना, पोल्यूशन के हिसाब से। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. अगर हम लोग ने न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो हमको सिर्फ एक ही साइड का स्टोरी हमको पढ़ने को मिलता। If you had read a news of India, you would most likely think of the protester. अब ये देखो, ये दोनों पेपर के अंदर पोल्यूशन के बारे में बता, मतलब एक बाजू जो पोल्यूशन बता रहा है वो पब्लिक की तरफ से बता रहा है और दूसरा जो फैक्ट्री की तरफ से बता रहा है। They are distributing traffic and continuously polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. But on the other hand, if you had read the story in the India Daily, you would know that the protests are because a lot of livelihood will be lost if the factories close because the relocation effort have not been adequate. अब देखो दोनों न्यूज़ के अंदर क्या हमको पता क्या चलता है यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है या फिर यहाँ के पब्लिक जो है वो या तो लोगों को बचाया जा रहा है, चलो फैक्ट्री को बंद कर दे, पोल्यूशन बंद कर दे, बंद हो जाएगा, चलो पोल्यूशन बंद हो जाएगा, लोगों को जीने के लिए मिल जाएगा, शांति हो जाएगा, यहाँ पे कोई बीमारी नहीं होगा। लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि फैक्ट्री को बंद करेगा तो कितने लोग वहाँ पे लाखों लोग उसके अंदर काम कर रहा है, उनका घर कैसा चलेगा। दोनों क्वेश्चन है ना वहाँ पे, दोनों एडवर्टाइजमेंट के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि हाउ पीपल विल लिव। ये किसके लिए लड़ाई किया जाता है, जिसको पोल्यूशन हो रहा है वो लोग बीमार होकर मर रहे हैं, और ये किसके लिए लड़ाया जा रहा है कि अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो लोग जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, ये किसके लिए लड़ाई हो रहा है ना। बोथ आर सेम न्यूज़ ओनली।
Neither of these stories is a balanced report. A balanced report is one that discusses all points of view of particular story and then leaves it to readers to make up their minds. यानी कि ये दोनों स्टोरी जो है इसको क्या करना है, बैलेंस स्टोरी इन लोग ने बनाया। क्या बोलते हैं हम लोग, अगर एक पत्ता नीचे गिरेगा तो वो कांटे के ऊपर गिरेगा ना, तो क्या होगा, किसको नुकसान होगा, पत्ते को ही होगा, कांटे को नुकसान होगा नहीं होगा, राइट। तो ऐसा ही बैलेंस जो न्यूज़ जो है पब्लिक को भी फ़ायदा होना चाहिए और फैक्ट्री भी चलना चाहिए, उसके लिए उन लोग वायलेंट, बिना वायलेंस से वो लोग न्यूज़ पब्लिक तक पहुंचाता है। राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट media means that no one should control and influence its coverage of news. No one should tell the media what can be included and what should be not be included in a news stories. क्योंकि मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी के कहने पर मीडिया नहीं चलता है। मीडिया अपने इंडिपेंडेंस, उसने क्या देखा, क्या सही है, क्या गलत है, उस सब कुछ सोच समझ के ही उसके अंदर उसको न्यूज़ दिया जाता है। As you read about, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not based. However, the reality is that media is far from independent. This is mainly because of two reasons. The first is control that the government has on the media. When the government prevents either a news item or scene from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship. Media independent है, it was independent for in his work, but what happened there, they cannot send each and every news to the in front of the public. That is why government has make one censorship. censorship का मतलब ये है कि सेंसर्स लोग जो होते हैं वहाँ पे, राइट, जो उन गवर्नमेंट के लोग होते हैं, ये इनको पहले दिखाना चाहिए कि भाई हम लोग ये न्यूज़ जाने दे रहा है, या हम लोग इस न्यूज़ के बारे में बता रहा है, या एक पिक्चर के बारे में बताया, या एक गीत के बारे में बताया, या एक गाने के बारे में बताया, पब्लिक के सामने पहुंचने के पहले इनको दिखाना पड़ता है। ये लोग बताएंगे कि भाई ये फैमिली पिक्चर है, तो इसके अंदर कौन सा सीन जो है वो पब्लिक को दिखाना है। They have to take the suggestion, they have to take information, but these things will be not come in front of the people. कभी कभी कुछ पिक्चर बना जाता है ना, तो उसके अंदर 6 गाना होता है, तो हमारे तक पहुंचता है तो उसके अंदर 3 ही गाना होता है, बाकी सब गाना को काट देते वो लोग। जो चीज़ हमको नहीं देखना चाहिए वो नहीं दिखाएगा। फैमिली के साथ देखना पिक्चर वाला है जो हमको देखना है। नाउ मीडिया दे आर शोइंग इन फ्रंट ऑफ आवर फैमिली। टीवी कहाँ है, हमारे घर के सामने ही, हमारा फैमिली के सामने ही, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग हम लोग साथ में देखते हैं। तो उसके अंदर अगर कोई गलत चीज़ उसके अंदर दिखाई दे तो वी विल सी, वी कैनॉट सी दैट, एवरीथिंग वी कैनॉट सी दैट। तो उसके लिए सेंसरशिप रखा है कि सही चीज़ जो है वही पब्लिक के सामने जाना चाहिए। There have been period in India history when the government censored the media. The worst of this was the emergency between 1975 to 1977. राइट, एक इमरजेंसी आया था 1975 और 1977 के टाइम पर, तब ऐसा एक मीडिया ने कुछ भेज दिया था, तभी पूरा का पूरा क्या हो गया था, पब्लिक जो था वो वायलेंट हो गया था। While the government does continue to censor films, it does not really censor the media coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. मतलब आज भी मीडिया जो है वो फेल हो जाता है बैलेंस स्टोरी को पहुंचाने तक, क्योंकि कुछ मीडिया को पहुंचाने के बाद अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई चलो मैं इस आदमी के ऊपर मैं मीडिया में जाके बता देता और मीडिया इसका वारा निकाल देगा, नहीं, गलत चीज़ है। मीडिया को अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिला है तो मीडिया विल टेल यू, वी विल चेक दैट थिंग्स आफ्टरवर्ड्स, वी विल कम टू यू। तो वो लोग जिसने कंप्लेंट किया है वो जाकर मीडिया जाकर उस बंदे का पास जाएगा और बंदे के पास पूरा स्टोरी और सब कुछ निकालेगा, और उसके बाद जाकर मीडिया को सही लगेगा कि हाँ भाई उस आदमी ने जो बोला था सही बोला था इसके ऊपर, अब मीडिया में इसको फ्लैश कर दो। डायरेक्टली कोई मीडिया में कोई हमको ऐसा बोलेगा तो जो ले मैं तेरे को देख लूँगा, मैं तेरे को मीडिया में बता दूंगा, वो कर लूँगा, ये करूँगा, तो मीडिया लोग पागल नहीं है, जो भी बोले वो गधे की तरह भाग जाएगा। नहीं, दे उनका एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसके हिसाब से ही उनको जाना पड़ेगा, वरना उसका मीडिया बंद हो जाएगा। The reason of this are complicated. Person who research the media have said that this happened because business houses control the media.
At times it is in the interest of this business to focus on only one side of the story. Media continual need for money and its links to advertisement means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisement. Media is thus no longer considered independent because of its close links to the business. वो इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करना पड़ता है, उसको मीडिया के साथ बिजनेस करना पड़ता है मीडिया को. Beside the above, the media also tends to focus a particular aspect of the story because they believe this makes the story interesting. Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of the story. मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर मीडिया को पता चलेगा, मीडिया को ये पसंद आएगा कि भाई हाँ ये स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग है, देन ओनली दे विल कंटिन्यू दिस स्टोरीज टू द इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, अदरवाइज दे नॉट, वो नहीं करेगा वो लोग. ओके, सो ये है चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में आपको भेजूंगा, तब तक आप लोग पेज नंबर 75 और 74, 75 और 76 का चैप्टर आप लोग रीड करेंगे. ओके, थैंक यू.